નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે એક એવી ગંભીર સમસ્યા બાબતમાં આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે જેણે આ દેશમાં અનેક જગ્યાએ માથું ઉંચક્યું છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા એ જનજીવન સામાન્ય રીતે વ્યતીત થાય અને માણસ પોતાનો વેપાર રોજગાર કે ધંધો નોકરી શાંતિથી કરી શકે તે માટે જરૂરી છે. ચાણક્ય તો એટલા સુધી કહ્યું છે કે આદર્શ રાજ્ય વ્યવસ્થા એને કહેવાય જ્યાં વેપારી પોતાના થડે બેસીને બેખોફ વેપાર કરી શકતો હોય, બહેનો ઘરેણાથી લદાઈને ઉત્સવો માણી શકતી હોય અને લોકો નિશ્ચિંત રીતે પોતાની દિનચર્યા પૂરી કરીને પોતાના ઘરમાં કુટુંબ સાથે આનંદ કિલ્લોલ કરતા હોય. આ પરિસ્થિતિ નોંધવાતી ચાલી છે. છત્તીસગઢના નક્સલ પ્રભાવિત બીજાપુરમાં 3 એપ્રિલ 2021 નક્સલીઓએ 700 કરતા પણ વધારે જવાનોને ઘેરીને તેમના પર હુમલો કરી દીધો. બીજાપુરના એસપીએ જણાવ્યું કે નક્સલીઓ સાથે થયેલી અથડામણમાં 22 જવાન શહીદ થયા છે અને 1 જવાન લાપતા છે. નક્સલીઓએ 2 ડઝન કરતા પણ વધારે સુરક્ષા કર્મીઓ પાસેથી તેમના હથિયારો છીનવી લીધા છે. સારા સમાચાર આ બધી બાબતોમાં આજે એ મળ્યા છે કે જવાન રાકેશ્વરસિંહ જે લાપતા હતા એ નક્સલીઓના કબજામાંથી મુક્તિ મેળવીને પરત ફર્યા છે. એમના પરિવારમાં આનંદની લહેર ફેલાઈ છે. સુરક્ષા દળોને જોનાગુડાની પહાડીઓ પર નક્સલીઓએ ડેરો જમાવ્યો હોવાની સૂચના મળી હતી. ત્યારબાદ શુક્રવારે રાત્રે બીજાપુર અને સુકમા જિલ્લાના કેન્દ્રીય રિઝર્વ પોલીસ દળની કોબરા બટાલિયન, ડીઆરજી અને એસટીએફના સંયુક્ત દળના નક્સલ વિરોધી અભિયાન અંતર્ગત 2000 જવાનોને રવાના કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ શનિવારે નક્સલીઓએ તરરેમ વિસ્તારની જોનાગુડા પહાડી પર 700 જવાનોને ઘેરીને તેમના પર હુમલો કરી દીધો. નક્સલીઓ જવાનોને 3 દિશાએથી ઘેરીને તેમના પર ફાયરિંગ કરવા લાગ્યા હતા. આશરે 3 કલાક ચાલેલી અથડામણમાં 15 નક્સલીઓ ઠાર મરાયા. આ હુમલામાં 22 જવાન શહીદ થયા અને 31 કરતા પણ વધારે ઘાયલ થયા. આ હુમલો સુનિયોજિત કાવતરું હોવાનું કહેવાય છે, જેની પાછળ 40 વર્ષીય નક્સલી કમાન્ડર હિડમા માસ્ટર માઇન્ડ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. હિડમા સલામતી દળો પર અનેક હુમલામાં સામેલ છે અને જઘન્ય હત્યાઓ માટે કુખ્યાત છે. તે સુકમા જિલ્લાના પુઆરથી ગામનો રહેવાસી છે. તેણે 90ના દાયકામાં હિંસાનો રસ્તો પસંદ કર્યો. ત્યારથી અનેક નિર્દોષ લોકોને મારી નાખ્યા છે. તે માઓવાદીઓની પીપલ્સ લિબરેશન ગોરિલ્લા આર્મીની બટાલિયન 1નો વડો છે. કેટલાક અહેવાલ મુજબ માઓવાદીઓના મિલિટરી કમિશનનો તે ચીફ પણ છે. તેના માથે 40 લાખનું ઇનામ છે. તેની પાસે AK-47 જેવા ઘાતક હથિયારો છે અને તેની ટીમમાં 180 થી 250 નક્સલીઓ છે, જેમાં મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી નક્સલીઓ જાન્યુઆરીથી જૂનના મહિનાઓમાં નક્સલી ટેક્ટિકલ કાઉન્ટર ઓફેન્સિવ કેમ્પેન ચલાવે છે. આ દરમિયાનમાં સલામતી દળો પર હુમલા કરાય છે. આ મહિનાઓ દરમિયાન વૃક્ષો પરથી પાંદડા ખરી પડ્યા હોવાથી પર્વતીય વિસ્તારોમાં ઉપરથી સલામતી દળોની હિલચાલ પર દૂરથી નજર રાખી શકાય છે. ગયા વર્ષે સુકમામાં નક્સલીઓએ 17 લોકોની હત્યા કરી હતી. એપ્રિલ 2019માં ભાજપના ધારાસભ્ય ભીમા માંડવી, તેમના ડ્રાઈવર અને 3 સલામતી જવાનોની નક્સલીઓએ હત્યા કરી હતી. વર્ષ 2010ના એપ્રિલમાં તળમેટલામાં નક્સલીઓના હુમલામાં 76 જવાન શહીદ થયા હતા. આ નક્સલવાદ છે શું? વ્યક્તિઓના નામ પરથી વિવિધ વિચારધારાઓના નામ પડે એની નવાઈ નથી, પણ એક ગામના નામ પરથી આખા વાદની ઓળખ ઊભી થાય એવું નક્સલવાદના કિસ્સામાં બન્યું છે. બંગાળી ઉચ્ચાર પ્રમાણે નક્સલબાડી, ગુજરાતીમાં નક્સલવાડી અને અંગ્રેજી સ્પેલિંગ નક્સલબારીના ઉચ્ચાર પ્રમાણે નક્સલબારી. આ ગામ પશ્ચિમ બંગાળના દાર્જિલિંગ જિલ્લાનું એ સ્થળ છે જ્યાં 1967માં નક્સલવાદને જન્મ આપનાર જમીનદારી વિરોધી વિદ્રોહ જાગ્યો હતો. બિમલ કિસાન નામના પશ્ચિમ બંગાળના ખેડૂતે અતિશય ખરાબ આર્થિક પરિસ્થિતિમાં પોતાનું ખેતર શાહુકારને ત્યાં ગીરવે મૂકેલું. વ્યાજનું દુષ્ચક્ર એવું કે ક્યારેય બહાર નીકળી ન શકાય. બિમલે જે શાહુકાર પાસે ખેતર ગીરવે મૂકેલું તે ખેતરમાં તે મજૂરી કરતો અને મજૂરીના બદલામાં તેને દર વર્ષે કુલ ઉપજના માત્ર 5% અનાજ મળતું, જેમાં
તેને તેના પરિવારને પોષવાનો અનેક વર્ષોની કાળી મજૂરી પછી બિમલ થાક્યો અને ન્યાય માટે કોર્ટમાં ગયો. બિમલને ન્યાય પણ મળ્યો અને 2 માર્ચ 1967 શાહુકારને જમીન પાછી આપવાનું ફરમાન કરવામાં આવ્યું. કોર્ટે આદેશ આપ્યો હોવા છતાં બિમલને જમીનનો કબજો ન મળ્યો. જ્યારે તે સ્થળે પહોંચ્યો, જમીનદારે તેના પર હુમલો પણ કર્યો. આ ઘટનાનો વિરોધ સમગ્ર ગામવાળાઓએ કર્યો અને પરિણામે જે જમીનો પર જમીનદારોનો કબજો હતો તેને ગામવાળાઓએ પોતાના કબજામાં લઈ લીધી. આરંભિક ઘર્ષણ પછી પોલીસે ગોળીબાર કરીને 11 દેખાવકર્તાઓને ઠાર કર્યા. તેમાં સ્ત્રીઓ અને 2 બાળકો પણ હતા. સિલીગુડી કિસાન સભાના પ્રમુખ જંગલ સંથાલના નેતૃત્વમાં ગ્રામીણોએ તીરકામઠાથી એક ઇન્સ્પેક્ટરને મારી નાખ્યો. લોકોના આ આક્રોશનો માઓ સમર્થક ચારુ મઝુમદારે લાભ ઉઠાવ્યો. ત્યાં સંઘર્ષની વાર્તાને ગામડાઓમાં લઈ ગયો અને લોકોને ભડકાવ્યા. આતંક ફેલાવનારી ટોળકીઓ બનાવી. આ ઘટનાથી શરૂ થયેલા હિંસક લોક આંદોલનની જ્વાળા ધીમે ધીમે આખા બંગાળમાં ફેલાઈ અને તે સંઘર્ષ નક્સલવાદ તરીકે ઓળખાયો. 2 મહિનામાં એવો જ સંઘર્ષ બિહાર, ઓડિશા, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુના માઓવાદીઓના વર્ચસ્વવાળા વિસ્તારોમાં થયો અને પછી હિંસા ફેલાતી ગઈ. જંગલ સંથાલ જેવા લોકોએ પણ મઝુમદારને સમર્થન આપી દીધું. ચારુ મઝુમદારે આ સમયગાળા દરમિયાન જે 8 લેખ લખ્યા તેને માઓવાદી આજે પણ પોતાની વિચારસરણીના સર્વોચ્ચ ડોક્યુમેન્ટ ગણે છે. શરૂઆતમાં નક્સલવાદીના ચારુ મઝુમદાર, કનુ સાન્યાલ, જંગલ સંથાલ જેવા સામ્યવાદી કાર્યકરો નક્સલવાદના મશાલચી બન્યા. પરંતુ નક્સલવાદ વાસ્તવમાં કોઈ અલગ વાદ ન હતો. એ ભારતમાં અને ખાસ કરીને બંગાળમાં ફેલાઈ ચૂકેલી ડાબેરી સામ્યવાદી વિચારસરણીનું વધારે આક્રમક સ્વરૂપ હતું. ભારતના ડાબેરીઓમાં પણ જૂથ અને ફાંટારો પાર નહોતો. તેમાં માર્ક્સવાદીઓ હતા ને માઓવાદીઓ, લેનિનવાદીઓ પણ. માઓવાદી નેતા કનુ સન્યાલને તો સીધી ચીનની મદદ મળતી હતી. આ બાબત તેણે પોતે સ્વીકાર કરી છે. નક્સલવાદી આંદોલન પછી ચીનથી તેને બતાવવામાં આવ્યું કે તે ભારતમાં કેવી રીતે માઓવાદ ફેલાવી શકે છે. તેને ભારતમાં પણ કમ્યુનિસ્ટ ક્રાંતિ લાવવાનું કહેવામાં આવ્યું. તેણે દેશમાં કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી માલે બનાવી. સાન્યાલ સમગ્ર રાષ્ટ્રની સંપત્તિને બધા લોકોમાં સમાન રીતે વહેંચવાની હિમાયત કરતો હતો, પરંતુ તેની બેઠકોમાં તે આતંક ફેલાવવા અને સરકારને નબળી બનાવવા ભાષણ આપતો હતો. 1972માં ચારુ મઝુમદારના મૃત્યુ પછી નક્સલવાદી આંદોલન વિખરાઈ રહ્યું હતું. જોકે એ પહેલા 1971માં જેમણે પશ્ચિમ બંગાળ એટલે આજે જેને આપણે બાંગ્લાદેશ તરીકે ઓળખીએ છીએ તે પૂર્વ પાકિસ્તાનની મુક્તિમાં ખૂબ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો હતો. તે જનરલ જેકોબને તત્કાલીન વડાપ્રધાને આ પરિસ્થિતિ થાળે પાડવાનું કામ સોંપ્યું હતું અને મહદઅંશે તેઓ સફળ રહ્યા હતા. 70ના દાયકામાં ડાબેરીને કથિત બુદ્ધિજીવીઓમાં બહુ લોકપ્રિયતા મળી. તેના હિમાયતી પોતાની જાતને પ્રગતિવાદી કે કોમરેડ કહેવાવાનું પસંદ કરતા હતા. ઘણા આઈઆઈટી અને અન્ય કોલેજના ડ્રોપઆઉટ્સ આ આંદોલન સાથે જોડાયા. તેઓ આદિવાસીઓ અને ભૂમિ વિહોણા મજૂરોના સંઘર્ષની હિમાયત કરતા હતા. જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી નવી દિલ્હી તો ડાબેરીઓનું સ્થાયી સ્થળ બની ગયું હતું. નક્સલવાદીઓ હિંસા કરતા ત્યારે તેઓ માત્ર તેમનું સમર્થન ન કરતા, પરંતુ રેલી યોજતા, પ્રદર્શનો કરતા અને સરકારને દોષિત ઠેરવતા. કેટલાક લેખકો અને બુદ્ધિજીવીઓના આવા ભાષણો અને લેખોને વિદેશી મીડિયામાં સ્થાન પણ મળવા માંડ્યું, પ્રશંસા પણ થવા માંડી. જેમ જેમ નક્સલવાદીઓના ક્રૂર અને કાયરતાપૂર્ણ કૃત્યો બહાર આવ્યા તેમ તેમ બુદ્ધિજીવીઓને પણ નક્સલવાદીઓમાં રસ ઓછો પડવા માંડ્યો. માઓવાદ અને નક્સલવાદ વચ્ચે શું તફાવત છે? માઓ ઝેડોંગ થોટ અથવા માઓવાદ ચીનના લશ્કરી અને રાજકીય નેતા માઓ ઝેડોંગ દ્વારા વિકસિત સામ્યવાદી સિદ્ધાંત છે, જેમણે પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇનાની રચનામાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવી હતી. જ્યારે નક્સલવાદ એક ભારતીય સામ્યવાદી ચળવળ છે જે માઓવાદી એડવોકેટ ચારુ મઝુમદારના ઉપદેશો પર આધારિત છે. નક્સલવાડામાંથી ફેલાવેલો નક્સલવાદ અને એવું જ થોડું વધુ હિંસક સ્વરૂપ ધરાવતો માઓવાદ ઘણા સમયથી એકબીજાના પર્યાય તરીકે વપરાય છે. ભારતમાં વર્તમાન સ્થિતિમાં નક્સલવાદીઓ અને માઓવાદીઓ એકબીજાની સાથે થયા છે. બંનેનો હેતુ એક છે. બંને માઓવાદી કમ્યુનિસ્ટ સેન્ટર, કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા, માઓવાદી 2004માં એક થઈ ગયા હતા. નક્સલવાદીઓનો હંમેશા એવો દાવો રહ્યો છે કે તેમણે ગરીબ, શોષિત, વંચિત અને સરકારી અત્યાચારનો ભોગ બનેલા લોકોના હક માટે હથિયાર ઉઠાવ્યા છે. ચોતરફ અન્યાય વ્યાપ્યો હોય અને સરકાર પાસેથી કશી આશા ન હોય ત્યારે હિંસક આંદોલનનો રસ્તો પણ એક સમયે ઘણો લોકપ્રિય બન્યો હતો. આ પૂર્વ ભૂમિકા સાથે આજે આપણે આજની ચર્ચા કરવાની છે. દર્શક મિત્રો, એક વાત સમજવી પડશે. ગુજરાતીમાં પણ પંક્તિઓ છે કે ભૂખ્યા જનોનો જઠરાગ્નિ જાગશે, ખંડેરોની ભસ્મકણી ન લાદશે. આ મૂળ મુદ્દાની વાત છે. આ દેશમાં બેરોજગારી અને સાથે સાથે સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી, 1% લોકો પાસે 58% સંપત્તિ હોય, 10% લોકો પાસે દેશની 90% સંપત્તિ હોય, તે પરિસ્થિતિમાં માઓવાદ ગણો
કે નક્સલવાદ ગણો એને ફેલાવવા માટે બહુ ફળદ્રુપ ભૂમિ મળી રહેતી હોય છે। આ અસંતોષ જેને આપણે આગળ વાત કરી, ભૂખ્યા જનોનો જઠરાગ્નિ જાગશે, ખંડેરોની ભસ્મકણીના લાદ છે, એ માઓવાદ કે નક્સલવાદને પોષવા માટે મૂળભૂત રીતે જવાબદાર છે। અને એમાં જ્યારે ભણેલ ગણેલ પોતાના તર્કથી બીજાને પ્રભાવિત કરી શકે એવા લોકો એમાં જોડાય છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આ પ્રકારનું આંદોલન એક અત્યંત ખતરનાક સ્વરૂપ ધારણ કરતું હોય છે। એનો પરચો આપણને 3 એપ્રિલે જે ઘટના બની એમાં જોવા મળ્યો છે। આ પરિસ્થિતિની ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણી પાસે 3 અત્યંત સક્ષમ અને વિદ્વાન પેનલિસ્टની पैनल છે। हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं एमएल कुमावत साहब, जो बीएसएफ के डीजीपी रह चुके हैं। आपने आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी समस्या के सामने ग्रेहाउंड जो उनका स्ट्राइक फोर्स है उनकी भी नेतृत्व किया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में खास सचिव की हैसियत से उन्होंने प्रशंसनीय कामगिरी करके अपनी कार्यदक्षता का परिचय कराया है। वैसे कुमावत साहब कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की इंट्रोडक्शन के लिए उनको इंट्रोडक्शन इनके नाम से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, मैं कहना चाहूंगा। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है। और इनको हमारे साथ जोड़ने में हमारे एक और साथी यहाँ हैं जो अनुपम सुरोलिया साहब, उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई है। मैं आपका स्वागत करता हूं कुमावत साहब, आपने एक अत्यंत शॉर्ट नोटिस में हमारे साथ जुड़ना कबूल किया, हम आपके आभारी है। सुहास मुंशी एक जर्नलिज्म में फ्रीलांस जर्नलिस्ट है वैसे, मगर आपका एक बड़ा नाम है। पॉलिटिक्स, कम्युनल राइट्स और नेचुरल डिजास्टर पर इनको काफी बड़ा रिपोर्टिंग का अनुभव है। इनकी पुस्तक कश्मीर पर जो लिखी गई है, दिस वर्ल्ड बिलो जीरो फ़ारेनहीट ट्रैवल्स इन द कश्मीर वैली, काफी अहम मुद्दों पे चर्चा करने वाली पुस्तक है। और सुहास जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। सुहास जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। हम आभारी है आपके, जो आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए सम्मति दी। केदार ठाकर साहब, गुजराती वैसे आर्म फोर्सेस में कम जाते हैं, हमारे ठाकर साहब उसमें एक अपवाद है। एयर कोमोडोर तक की उच्चतम पद पर पहुंचने वाले ठाकर साहब आज एयर कोमोडोर केदार ठाकर आज ये अपने अनुभवों का निचोड़ देकर हमारी सुरक्षा यूनिवर्सिटी में अपनी काबिलियत का परिचय दे रहे हैं। ठाकर साहब, आपका भी स्वागत है। शुरुआत हम करेंगे कुमावत साहब आपसे, क्योंकि आपने बिल्कुल मैदानी तौर पे वहां काम किया है। आपका जो आंध्र प्रदेश का टेनोर था, सीधी तरह से नक्सलवादियों के साथ उनको काबू में करना और ग्राउंड फोर्स का नेतृत्व करना आपकी जिम्मेवारी थी, और आपने काफी बड़ी काबिलियत का वहां परिचय दिया था। तो क्या मानते हैं इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, जहां हमेशा कहीं ना कहीं अपने जो पैरामिलिट्री फोर्स है जो इस तरह की घटनाओं में नक्सलवाद या माओवाद से जो लोग जुड़े हैं, जो हिंसा करते हैं, उन पे काबू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, काफी बड़ी संख्या में वो शहीद भी हो जाते हैं। तो ये घटनाओं के बारे में आपकी क्या मान्यता है, और क्या मानते हैं आप किस तरह से उनकी समाप्ति की जाए? क्या कोई रास्ता है जिससे इस तरह के जघन्य कृत्य का अंत ला सके? मैं सबसे पहले व्यास साहब आपका आभारी हूँ, आपने मुझे आपकी जीएस टीवी के ऊपर मौका दिया के ऊपर माओवाद के ऊपर कुछ बताने का। इसकी कहानी बहुत लंबी है और खून से संचित है। वैसे जो सुन रहे हैं उन लोगों को भी मालूम होगा कि साम्यवाद को करीब 100 साल हो गए हैं दुनिया के अंदर, और रशिया के अंदर जब 1918 के अंदर साम्यवाद आ गया तो इस तरह का लगा दुनिया को कि अब दुनिया के अंदर सर्वहारा वर्ग, मजदूर, गरीब लोग हैं, उनका उत्थान होगा। तो उसके बाद में आपने देखा कि चीन के अंदर भी माओ के नेतृत्व में साम्यवाद आया।
बहुत बड़ी क्रांति थी, रूस वाली बड़ी क्रांति थी, रशिया वाली बड़ी क्रांति थी। और अब हमारे देश में भी 1925 में कोई ज्यादा समय नहीं लगा, यहाँ पर भी साम्यवाद आ गया था। यहाँ पर सबसे पहले आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर 1946 के अंदर एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जो कम्युनिस्ट आंदोलन था। वो हथियारों वाला आंदोलन था, जिनको फाइनली सरदार पटेल जो हमारे गृह मंत्री थे 1947 के अंदर, वहां आर्मी भिजवानी पड़ी और साम्यवाद को कंट्रोल में किया गया। उसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। तो आंध्र प्रदेश के अंदर इसका इतिहास रहा है साम्यवाद का, और बाद में लंबा इतिहास है। परंतु जो नक्सलवाद जिसे हम जानते हैं, ये 1967 के अंदर बंगाल के अंदर आया, और उस समय उसका प्रभाव पूरे देश में देखा गया। परंतु जड़ें जहां पे पकड़ी गई वो थी आंध्र प्रदेश, केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर। केरला और वेस्ट बंगाल के अंदर लैंड रिफॉर्म्स काफी तेजी से किए गए और वहां पर खत्म हो गया। परंतु आंध्र प्रदेश के अंदर जमींदारी जो व्यवस्था थी, उसके कारण से तेलंगाना में विशेषकर और श्रीकाकुलम एरिया के अंदर 67 में भी ये प्रॉब्लम वापस खड़ी हुई, और उसके बाद में दोबारा 1970s लेट 70s में भी आ गई। जब मैं वहाँ पे एक यंग IPS ऑफिसर के रूप में 72 में गया था, तो पिछले 50 साल से मैं इस नक्सलवाद आंदोलन को झेला भी है और पढ़ा भी है, और अभी भी इसको फॉलो कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के अंदर जो हमें सफलता मिली है, वो कोई सफलता एकदम नहीं मिल गई। वहां पर भी सैकड़ों पुलिस अधिकारियों ने और हमारे जवानों ने शहीद हुए और काफी सीखा। उसके बाद में हमें ये सफलता मिली। तो उस कहानी को यदि मैं बताऊं कि हम वहां पे सफल क्यों हुए। पहले शुरू में वहां पर भी इस तरह की सोच थी कि ये एक केवल पुलिस समस्या है, इसको इस तरह से डील किया जाना चाहिए, केवल पुलिस को डील कर सकती है। और पुलिस के अंदर भी कई लोगों की ये सोच थी राजनीतिक वर्ग के अंदर कि ये लोग अच्छे लोग हैं, नक्सल लोग अच्छे हैं, गरीबों का भला सोचते हैं। पर वो ये भूल गए थे कि नक्सलवादी फिलोसॉफी है, वो ये कहती है कि हमें सत्ता हड़पनी है हथियारों के द्वारा। जो एक प्रजातंत्र के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर कोई भी सरकार किसी भी हथियार बंद जो गुट है उसको सत्ता नहीं सौंप सकती, सत्ता नहीं दे सकती। तो इनके साथ लड़ाई तो होना ही था। और ये लड़ाई जो हम कहेंगे कि आर पार की जो लड़ाई शुरू हुई वो 1989 में उस समय NT रामाराव मुख्यमंत्री थे। उस समय में एक ग्रेहाउंड्स नाम की संस्था का गठन किया गया, जो एक अलग ही तरह की संस्था थी, बनी है, और उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। सभी प्रधानमंत्री, सभी गृह मंत्री इसकी चर्चा कर चुके हैं, और दूसरे प्रांतों में भी इस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। पर मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि ये जो समस्या है, ये जो ग्रेहाउंड्स है, केवल ग्रेहाउंड्स के द्वारा ही समस्या हल नहीं हुई है। एक इंटेलिजेंस विंग अलग से तैयार हुआ, जिसमें नक्सलवाद से जुड़े हुए लोगों के ऊपर अच्छा, बहुत गहरा डेटा इकट्ठा किया गया, उनकी सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, और वो अच्छी जानकारी प्राप्त अभी भी कर रही है। इसके अलावा इस संस्था के अलावा भी वहाँ की सरकार ने भी डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत अच्छी कार्रवाई की। डेवलपमेंट के बिना आप नक्सलवादी एरिया के अंदर ट्राइबल्स को आप उनसे, नक्सलवादियों से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जल, जंगल और जमीन का जो झगड़ा था, तो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट जो आई, TDP तेलुगु देशम पार्टी की और बाद में कांग्रेस पार्टी की भी, उसमें अच्छी बात ये रही कि सारे गवर्नमेंट जो 1989 के बाद में जो भी सरकार आई है, उन्होंने नक्सलवाद को दूर करने के लिए एक जैसी कार्रवाई की है। और एक बात बड़ी दिलचस्प है जो मैं बताना चाहूंगा। जिस समय मैं ग्रेहाउंड्स का चीफ था, उस समय हमने जो हमारे पड़ोसी राज्य थे, वहाँ के पुलिस अधिकारियों को हमने आमंत्रित किया विशाखापट्टनम में, और हमने उनको कहा कि आप अपने प्रांत में भी नक्सलवादियों पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जब हम कार्रवाई करते हैं तो उड़ीसा चले जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था, वो महाराष्ट्र में चले जाते हैं। तो मुझे जो कहा गया वो ये था कि नहीं, ये हमारी समस्या नहीं है, यहाँ पर ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ खूनी कार्रवाई उनकी नहीं है, हम उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये उस समय उनकी जो ये रवैया था उस समय की गवर्नमेंट का, उसके कारण से
आज यहाँ पर ये समस्या बहुत विकराल रूप में खड़ी है। और ये समस्या पीडब्ल्यूजी पीपल्स वॉर ग्रुप जो कोंडापल्ली सीतारामैया ने खड़ा किया था, उसका ग्रुप और एक ग्रुप जो बिहार के अंदर था, ये दोनों ग्रुप जब 2004 में जब एक हो गए तब ये समस्या और भी विकराल रूप में खड़ी हो गई। ये 1+1 2 नहीं बल्कि 1+1 11 बन करके ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, जिसे आजकल माओवाद कहते हैं, ये समस्या खड़ी हुई। और इसमें इतने बड़ी बड़ी इनकी कार्रवाइयां हुई कि मैं कुछ नाम ही बताना चाहूंगा। जहानाबाद में जो उनका 2005 के अंदर अटैक था, ये बहुत बड़ा एक पूरी हिंदुस्तान को एक बड़ा झटका लगा था उस समय। 2007 के अंदर रानी बोडली के अंदर 56 पुलिस वाले मारे गए थे, शहीद हुए थे। इसी तरह से 2008 में भी नयागढ़ के अंदर अटैक हुआ, मैं स्वयं वहां पर गया था। उन्होंने किस तरह से वहां पे आर्मरी को लूट लिया, 3 ट्रक लोड्स भर करके वेपन्स वहां से ले गए। उसके बाद में उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और उन्होंने एक अच्छा दल भी बनाया, पुलिस संगठन को मजबूत किया और वहां पर ये समस्या करीब करीब अपने लास्ट लेग के ऊपर है। परंतु छत्तीसगढ़ के अंदर समस्या बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे जंगल ज्यादा है। अबूझमाड़ जो एरिया है वो अप्रोचेबल नहीं है, वहां पे कम्युनिकेशन के साधन अभी भी अच्छे नहीं है, रोड्स नहीं है। और इनका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा पे जुरिस्डिक्शन है, वहां पे सारे ये मिलते हैं। और कई कारण है कि इन्होंने पहले जो कार्रवाई नहीं की उसको ये इनको भुगतना पड़ रहा है। परंतु जो कार्रवाई कर रहे हैं अभी, वहां पर आपने देखा होगा कि करीब 70-80 बटालियन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की लगी हुई हैं, परंतु सफलता उनको नहीं मिली है। हमें सफलता आंध्र प्रदेश में मिली। उसका एक मुख्य कारण ये था कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने इस समस्या का मुकाबला किया। हमने भारत सरकार से केवल 5 बटालियन, जब समस्या विकराल रूप में थी उस समय केवल 5 बटालियन थी। और आज सोचिए, छत्तीसगढ़ बहुत छोटा प्रांत है, वो आंध्र प्रदेश के मुकाबले में वहां पर 80 से ज्यादा बटालियन भारत सरकार की लगी हुई है और छत्तीसगढ़ की सरकार की भी बटालियन वहां पर हैं, पुलिस भी वहां पर है, पर उनको सफलता नहीं मिली है। क्योंकि उसका कारण यही है कि वहां की पुलिस इसको मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो वहां पर नहीं हुआ है। और इसका मुख्य कारण ये है। और भी मैं इसमें क्या किया जाना चाहिए, जब नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। यदि आप चाहें तो मैं अभी भी बता सकता हूँ 5 पॉइंट्स जो मेरे हैं। मैं फिर से आऊंगा। ये आपने जो पूर्व भूमिका रखी है कुमार साहब, वो इतनी विस्तृत है और मैं मानता हूं कि मूलतः ये समस्या क्या है उसका निरूपण आपने काफी काबिलियत से किया है। हम आगे चलेंगे और फिर लौट के आपके पास भी फिर से आऊंगा। दर्शक मित्रों, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री કિશન રેડ્ડીએ 19 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે દેશના 11 રાજ્યોના 90 જિલ્લામાં હાલ નક્સલ પ્રભાવી લેફ્ટ વિંગ એક્સ્ટ્રીમિઝમ LWE જિલ્લા છે અને 2015 થી 15 ઓગસ્ટ 2020 સુધીમાં આ વિસ્તારોમાં 350 સુરક્ષાકર્મી, 963 નાગરિકો, 871 નક્સલો માર્યા ગયા હતા, જ્યારે આ જ ગાળામાં 4022 નક્સલોએ शरणागति स्वीकारी थी। आ मुद्दे આપણે આગળ चर्चा કરીશું। सुहास जी, मैं आपके पास आऊंगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, मगर मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि जिस तरह कुमावत साहब ने इसकी पूर्व भूमिका रखी है, ऐसा लगता है कि मूलतः जमीन और जर, जिसको हम संपत्ति बोलते हैं, इसकी असमान जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक समस्या की जड़ है और उसमें शायद अब जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसने शायद पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। हम सुनना चाहेंगे आपसे, आपको इस बाबत में काफी आप माहिर है, आपको अनुभव है। तो मैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकूंगा, उसके बाद फौरन लौट के आपके पास आऊंगा। तब तक आपको समय मिले इसलिए आपको ये प्रश्न में बता देता हूं। धन्यवाद। मैं आता हूं रुक के छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। दर्शक मित्रों, रोकाईशुं एक नानकड़ा कमर्शियल ब्रेक माटे અને પછી પાછા ફરી આ ચર્ચા। नमस्कार दर्शक मित्रों, ब्रेक बाद पुनः नक्सलवाद અને એના આતંકને લગતી આ ચર્ચામાં આપનું સ્વાગત છે। सुहास जी, मैं रुख करूंगा आपकी ओर। आपसे जो हम उत्तर चाह रहे हो, प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, सो ओवर टू यू।
એવું લાગે છે કે ટેલિકોમ્યુનિકેશન આપણી સાથે બહુ મેબર નથી. સુહાસજી સાથેનો સંપર્ક પુનઃ સ્થાપિત થાય ત્યાં સુધી કેદારભાઈ આપની પાસે આવીશ. પ્રશ્ન એ જ રહેશે કે શું આ નક્સલવાદની સમસ્યા સંપત્તિનું અસમાન વિતરણ, જમીનદારી થકી કરવામાં આવતા અત્યાચારો અને એના ઉપર હવે ફેલાતી બેરોજગારી, એના કારણે આવનાર સમયમાં વિકરાળ બનતી જશે, શું માનવું છે આપનું? ધન્યવાદ જયનારાયણભાઈ. આપના પ્રશ્નનો જવાબ દઉં એ પહેલા એક સેકન્ડ માટે કુમાવત સાહેબનો ખૂબ આભાર માનવા માંગુ છું. બહુ સરસ વાત એમણે કરી. એ પોતે ફિલ્ડમાં ત્યાં રહ્યા છે એટલે એમની વાત જાણીને બહુ આનંદ થયો, બહુ મજા આવી એમની વાત સાંભળવાની. कुमार साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी बातें हमें काफी इंसाइट दे रही थी कि एक्चुअली कैसे ऑपरेशन हुआ था और कैसे आंध्र प्रदेश में आपने उसको मैनेज किया है. आपको बताते हुए मुझे आनंद होता है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं होमलैंड सिक्योरिटी का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चलाता हूँ, वहाँ पे जब हम नक्सलाइट की बात करते हैं और आंध्र प्रदेश की हम सक्सेस स्टोरी जो है उसकी हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करते हैं और इसको बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. एंड क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. જયનારાયણ ભાઈ, આપે જે વાત કરી, જે પ્રશ્ન પૂછ્યો, મારું માનવું એમ છે કે જ્યારે આ મુવમેન્ટ શરૂ થઈ ત્યારે તો વાત બરાબર છે કે એ લોકો પાસે આ મુદ્દો હતો કે આદિવાસીઓ અને બીજા ટ્રાઇબલ્સ જે છે એ લોકોને જમીની હક નહોતા મળતા, જે મળવા જોતા હતા વર્ષોથી, સદીઓથી જે એમની પાસે હતા. પણ આજે શું સ્વરૂપ છે? આજે તો સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું છે. They have left that philosophy. આજે જે લોકો માટે લોકો લડતા હતા એ જ લોકો ઉપર અત્યાચાર પણ કરે છે, ફાંસીએ લટકાવી દે છે. જરા પણ ડાઉટ જોઈએ કે ઇન્ફોર્મર છે કે પોલીસ ઇન્ફોર્મન્ટ તરીકે જાહેર કરીને એને લટકાવી દે છે. જે લોકો વોટિંગમાં ભાગ લે અને જેના આંગળી ઉપર વોટિંગ કરવાનું નિશાન હોય એની સામે એ લોકો એક્શન લે છે. તો જે માણસોના વેલફેર માટે, જે માણસોને બચાવવા માટે અત્યાર સુધીની લડાઈ લડતા તેના બદલે એ માણસોની વિરુદ્ધ થવા માંડ્યા છે અમુક રીતે. મે બી ધીસ ઇઝ અ સાઇન ઓફ ડેસ્પરેશન. બીજી વાત કે જે એ લોકોનો આઈડિયા હતો કે આપણે સરકારને ઉથલાવી દેવી છે અને એક રિવોલ્યુશન કરીને આપણે દેશમાં રાજ બદલાવી નાખવું છે, માઓઇસ્ટ થિંકિંગ લાવવું છે, એ તો 70, 80, 100 વર્ષ જૂની ફિલોસોફી છે. આજના જમાનામાં ક્યાં શક્ય છે? એટલે મને એવું લાગે છે કે આ બધા મુદ્દાઓ બરાબર છે, પણ એક રીતે આ એક પાવર સ્ટ્રગલ છે, એક રીતે આ એક ઇન્સર્જન્સી છે અને એના માટે આપણે અંગ્રેજીમાં જેમ કહે છે કે આયરન ફિસ્ટ ઇન અ વેલ્વેટ ગ્લોવ, એ જાતની આપણે એક આપણે એપ્રોચ લેવો પડશે. એને આપણે ઇન્સર્જન્સી તરીકે જ આપણે એને ડીલ કરવી પડશે. એની સામે સખત પગલાં લેવા પડશે. આપણે એની સામે ઇન્ટેલિજન્સ અને ફોર્સિસને બરાબર તૈયાર કરીને પગલું લેવું પડશે. અને એની સામે જ્યાં લોકોનો સવાલ છે ત્યાં લોકો માટે ડેવલપમેન્ટ, એ લોકોની જે ઈચ્છાઓ છે, એ લોકોની જે એસ્પિરેશન્સ છે, જે એ લોકોને જમીની હક છે, એ આપણે પૂરા પાડવા પડશે. આ ડ્યુઅલ ફિલોસોફી આપણે ફોલો કરવી પડશે જો આપણે એને રોકવા માંગતા હોઈએ તો. કારણ કે આટલા વર્ષો થઈ ગયા, હજી સુધી આપણે શું કામ નથી કંટ્રોલ કરી શક્યા, એ પણ એક પ્રશ્ન છે. કાશ્મીરની વાત જુદી છે, પંજાબ મિલિટન્સીની વાત જુદી છે, બધા બોર્ડર સ્ટેટ્સ છે, નોર્થ ઇસ્ટની વાત જુદી છે, પણ આ જે રેડ કોરિડોર છે આ તો ઇટ ઇઝ ઇન ધ હાર્ટલેન્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. એમાં આપણે કેમ આર્મ્સ રોકી નથી શક્યા, કેમ આપણે ફંડિંગ નથી રોકી શક્યા, કેમ આપણે એને ટેકલ નથી કરી શક્યા? આ આપણે ખાસ ધ્યાન દેવાની જરૂર છે એવું મને લાગે છે. જય नारायण भाई. जी धन्यवाद. सुहास जी, अब आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो वही प्रश्न जो मैंने आपको पूछा था उसका उत्तर मैं आपसे अब पाना चाहूंगा.
हेलो। हाँ, आप बोल सकते हैं, आवाज सुन रहे हैं हम आपकी। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। राइट, राइट। जो आपने बोला था वहाँ पे माओइज्म की शुरुआत और जो अभी सामने जाए, तो जैसा हमारी रिसर्च रही है, जैसे हमारी बातचीत रही है फॉर्मर माओइस्ट से या हमारे रिपोर्ट्स के दौरान माओइस्ट से, तो बस्तर कभी उनका एक्सपेंशन का गढ़ नहीं था। मतलब उनके प्लान्स में जब सीतारामैया वगैरह 1980 में आंध्र प्रदेश, जहां से उनके अभी की सारी लीडरशिप है, तेलंगाना जो अभी है, वहां पे पश्चिम बंगाल ऑब्वियसली चारू मजुमदार की वजह से, और बाकी जगह मध्य प्रदेश का काफी जोर रहा। उड़ीसा में बस्तर हमेशा उनके लिए काफी हद तक एक छुपने की जगह रही। मगर कुछ वक्त के बाद उन्होंने जब समझा कि वहां पे जंगल का एक मुद्दा है, जो आदिवासी जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं उसकी वजह से आदिवासी बहुत तरह तो खुश नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से वो अपने उत्पाद जो जंगल का है वो बेच नहीं सकते। तो एक चीज है जिससे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और वो उन्होंने की। ऑब्वियसली वहां पे अबूझमाड़ जैसी जगह है जहां पे कभी सर्वे नहीं हुआ था, जहां कहीं सरकार नहीं पहुंची थी, तो उन चीजों का उन्होंने फायदा उठाया। और नेचुरली उनके प्रथम मुद्दे आइडेंटिटी और इनइक्वालिटी पे ही रहे हैं। और यही चीज है, अभी भी वो जब प्रेस स्टेटमेंट इशू करते हैं तो उसमें अभी भी किसानों की बात जो कि एक मुद्दा चल रहा है, या जॉबलेसनेस की बात, इन चीजों पे ही उनका जोर रहता है। और जो एक बात रही है कि क्यों पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन जगह पे माओइस्ट खत्म हो गए, बस्तर में नहीं हो पाए, उसका एक मेजर कारण जो ज्यादा लोग जिससे बात नहीं करते वो वहाँ का टेरेन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घने जंगल हैं और वो पहाड़ियां हैं जहाँ पे बहुत इजी एक्सेस है नहीं। तो उनको स्पॉट करना, या मतलब हमारी फोर्सेस के पास अभी भी ड्रोन्स हैं, बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट है, नाइट विजन गॉगल्स है, बट इतने घने जंगल में पश्चिम बंगाल एकदम समान सपाट जमीन थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा नहीं चला, बहुत जल्दी खत्म हो गए। सिमिलरली बाकी जगहों में भी। बट एक बस्तर का चैलेंज जो हमें मानना पड़ेगा वो वहाँ के टेरेन भी है। वहाँ पे आईटीबीपी भी है, बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, और पुलिस महकमे के ही काफी फोर्सेस, अलग अलग तरीके की फोर्सेस भी हैं। डीआरजी भी है, बस्तरिया बटालियन एक उन्होंने बनाई, वो भी है। बहुत तरीके की चीजें हैं। सरेंडर्ड नक्सल्स भी पुलिस के साथ मिलके और ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं, तो वो एक है। तो अभी जो बस्तर में जो अभी लेटेस्ट बीजापुर सुकमा बॉर्डर पे जो अटैक हुआ, उसको हमें एक इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि पिछली बार जब यहाँ बड़ा अटैक हुआ था वो 2017 में था, अप्रैल में, जब बुरकापाल एक सीआरपीएफ का कैंप है वहां पे, चिंतलनार और चिंता गुफा के बीच में है, गौरनापाल जगरगुंडा ये जगह है उसके बीच में। तो वहां पे 25 सीआरपीएफ के जवानों को उन्होंने मारा था, एक रोड ओपनिंग एक्सरसाइज में वो कर रहे थे, भाग ले रहे थे। जो डेवलपमेंट की बात है उसके लिए ही हमारी फोर्सेज वहां लगी हुई थी कि रोड बने और सुरक्षित रहे, जो कि नक्सल उनका हमला इस पे रहता है कि रोड ना बने, ताकि बसें ना चले और इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले लोगों को। तो सीआरपीएफ की टुकड़ी उसके लिए थी जिसपे उन्होंने हमला किया। तो 2017 से अभी तक वो कोई बड़ा हमला नहीं कर पाए। लॉकडाउन में भी उनकी, जैसे इंटेलिजेंस इनपुट्स वगैरह से हमें समझ आया, उनकी कोशिश ये रही लॉकडाउन में, उनका रिक्रूटमेंट काफी कम हो गया है, और तेंदुपत्ता जो एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो सरकार खरीदती है और उस कैश में से वो वसूली करते हैं, वो सरकार ने ऑनलाइन कर दिया। तो गांव वाले भी समझदार हो गए हैं। अब गांव वाले उनको बताते नहीं है कि बैंक ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली क्या बेचा, कितना बेचा, तो उनकी वसूली ऑनलाइन की वजह से उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी कम हो गए हैं। तो बहुत डेस्परेट हो गए थे, रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रही थी। तो इस ऐसे हमले से उनके 2-3 मकसद कामयाब होते हैं। एक तो ये कि आप एक बड़ा अटैक करो जिससे आप लोगों में मैसेज भेज सको कि हम अभी एक्टिव हैं और हम अभी हमला कर सकते हैं, और जिससे कि वो और लोगों को आकर्षित कर पाए। और दूसरा कि वहां पे जो एक बहुत लंबा जाल कसा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने बस्तर में, जो
बहुत मतलब होशियारी के साथ फोर्सेस कर रही हैं वो ये है कि अपने सिक्योरिटी कैंप्स का नेटवर्क वहां बढ़ा रही हैं बस्तर में, जहां वो एक सीमित क्षेत्र में अब सीमित हो गए हैं। सिर्फ 90 डिस्ट्रिक्ट में अब वो हैं, जहां पे कि एक टाइम पे 200 कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ करते थे। तो उनका सिक्योरिटी कैंप बनाने से मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है। बहुत इजीली ये लोग इकट्ठा होके हमला नहीं कर पा रहे हैं या वसूली नहीं कर पा रहे, इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पा रहे। तो दूसरा एक बड़ा कारण जो इनका है हमला करने का वो है कि नए कैंप्स ना बने और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कैंप्स का नेटवर्क और बड़ा ना कर पाए। तो 2-3 उससे, और इन्होंने क्योंकि मैं अभी बस्तर में था, इनफैक्ट मार्च में मैं 3 हफ्ता वहां पे रिपोर्टिंग करके आया हूँ, और सिक्योरिटी फोर्सेस से जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने ये मुझे बताया था कि 2 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे फोर्सेस के लिए हर साल जब वो एक वारदात नहीं अंजाम दे पाते, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क काफी बेहतर हो गई है, फोन लाइन बेटर हैं। तो पहले अगर आप किसी आपके सोर्सेस थे भी जंगल में और आप वो इंफॉर्मेशन देना भी चाहते थे तो वो 2-3 दिन पुरानी हो जाती थी, क्योंकि आज आपने किसी को देखा, आपके पास फोन नहीं है, आप जाके किसी को बताओगे उसमें टाइम वेस्ट हो जाता था। अभी फोन लाइन काफी व्यवस्थित हो गई है, तो उसकी वजह से आप तुरंत जानकारी दे पा रहे हो। तो काफी उनके नक्सल जो कमांडर्स हैं उनको एनकाउंटर भी हुआ। और एक बड़ी चीज और हुई कि उनकी सरेंडर पॉलिसी 2015 से काफी अच्छी रही। हालांकि उसमें क्रिटिसिज्म रहा कि कुछ जो सरेंडर थे वो फेक थे या जो भी था, बट काफी हद तक सरेंडर असली भी बड़े लीडर्स के देखने को मिले हैं। तो सरेंडर पॉलिसी भी रही है, और उनका एक जो अभी लीडरशिप है वो 80 में जो आए थे वही लोग हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। और उनकी अब वो उन सबकी उम्र 90, किसी 80, 85 इस तरह की उनकी एज है, और उनके बाद कोई लीडर भी नहीं है जो आगे उनकी कमान संभाले। तो वो एक डेस्परेशन भी है, क्योंकि एक नए सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है उनके पास। मडावी हिडमा जिसकी बात होती है, जिसने ये इस वारदात को अंजाम दिया, या 2010 में जो हमारे 75 जवान मारे गए थे, या 2013 में कांग्रेस लीडरशिप जिसमें 27 लोग मारे गए थे, इन सारी बड़ी वारदातों में हिडमा का नाम अक्सर आता है। वो PLG बटालियन नंबर 1 जिसमें उनके सबसे ज्यादा सैनिक हैं, उसकी बटालियन है। तो वो हिडमा भी इनके साथ, वो लोकल आदिवासी है, बट वो भी मतलब इनके लीडरशिप वो नहीं समझ पाए कि वो लीडर है। तो वो भी अभी सिर्फ एक मतलब उनके लिए एक कमांडर लेवल ही है। तो एक डेस्परेशन वो भी है कि हमारे पास मतलब ये खत्म होने वाला है, तो वो डेस्परेशन भी है। गणपति इनका एक बड़ा लीडर था, वो इनएक्टिव हो गया। रमन्ना इनका एक बड़ा लीडर था, वो पिछले साल मर गया। तो मतलब बहुत सारी वजह से बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं माओइस्ट। तो इस अटैक को हम इस संदर्भ में देख सकते हैं। जी दर्शक मित्रों, सुहासजी आ जे विस्तारमा बनाव बन्यो ते बस्तरना नक्सल प्रभावी विस्तारमा हमणां ज रिपोर्टिंग माटे गया था ने त्यां मुलाकात करी अने एमणे जे एमनी तात्कालिक मुलाकातनी जे माहिती हती आपणने आपी। कोमावत साहेबे तो ग्रेहाउंडनी स्थापना अने नेतृत्व कर्युं अने नक्सलाइट मूवमेंटने जेम आपणने एयर कोमोडोर केदारभाઈએ કહ્યું તે પ્રમાણે એક મોડેલ તરીકે આ દેશમાં પ્રસ્થાપિત કરી। એટલે આજે આપણી ચર્ચામાં બે એવા મહાનુભાવો છે કે જે આ ક્ષેત્રના સીધા અનુભવી છે, જે સામાન્ય રીતે આ પ્રકારની પેનલ ચર્ચામાં મળવા બહુ મુશ્કેલ છે। ઓફકોર્સ કેદારભાઈ આપણા ઘરના છે અને આ વિષય ભણાવે છે, પણ આપણા બંને આ મહાનુભાવો પણ આપણને મળ્યા તે આપણું સદનસીબ છે। कुमार साहब, आपके और रुख करना चाहूंगा, क्या ये जो 2000 की संख्या में जवान और अफसर मिलकर कुछ इन लोगों के ऑफेंसिव के लिए जा रहे थे, तो वो यू शेप में घेरे गए, क्या आप इसको स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कहते हैं, या क्योंकि डेसिडियस फॉरेस्ट है, इन लोगों को ऊपर से शायद ज्यादा अच्छा दिखता होगा, मगर बिल्कुल नहीं दिखे ऐसा तो इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। इंटेलिजेंस होगी और भी उनके पास चौकन्ने रहने के मुद्दे होने चाहिए थे, ड्रिल होगी, तो ये कैसे घेरे गए इस तरह तीनों ओर से?
क्या आप इसको ये कहना चाहेंगे कि कोई कहीं कोई चूक हुई या कोई इंटेलिजेंस फेल्योर था? क्या आपके मतलब के मुताबिक क्या होगा इसका रिजल्ट? जो अभी ये घटना हुई है जिसमें हमारे पुलिस के, कोबरा के और छत्तीसगढ़ के जवान जो शहीद हुए हैं, ये क्यों हुई इसकी डिटेल में मुझे उतना ही मालूम है जितना आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, और कुछ लोगों से मैंने बात भी की है। उसके ऊपर अभी कहना उचित नहीं होगा, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वहाँ ये समस्या है, अब इससे कैसे निपटा जाए, इसका भविष्य क्या है, इसके बारे में मैं अपने विचार बताना चाहूंगा कि साम्यवाद और वो भी रेडिकल कम्युनिज्म का भविष्य भारतवर्ष में बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये है कि रशिया में ये खत्म हो चुका है, नाम के लिए कम्युनिज्म है वहां पर कम्युनिस्ट फिलोसॉफी को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। वहां कैपिटलिस्ट मैंने एक नया शब्द दिया है, कैपिटल कम्युनिज्म। कैपिटल सारी व्यवस्था कैपिटलिस्ट व्यवस्था है और कम्युनिज्म उनका शासन है, और वो का वही बात चीन के अंदर है। कैपिटल कम्युनिज्म है, वहाँ कैपिटलिस्ट हो गए हैं, बड़े बड़े बिलियनर्स हैं। आपने देखा होगा कि इतना उन्होंने बिलियनर्स पैदा हुए हैं जो कि बड़े बड़े कैपिटलिस्ट देशों में भी नहीं होंगे, और भारत में इसका भविष्य इसलिए नहीं है तो कम्युनिज्म के बारे में थोड़ा सा भी किसी को ज्ञान हो, ये 5 पॉइंट जो ये ध्यान में रख लें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यदि आप पढ़ें जो मार्क्स का 1872 में, वो भारत के अंदर सफल इसलिए नहीं हो सकता इन 5 कारणों से कि यहाँ ये परिवारवाद संस्था में विश्वास नहीं करते। भारत एक परिवार में विश्वास करता है, परिवार की संस्था जो है कितनी मजबूत है अपने देश के अंदर, और ये कहता है कि वी शुड एबॉलिश फैमिलीज, देयर विल बी नो फैमिलीज, देयर विल बी नो मैरिजेस। आप सोच सकते हो जिनकी सोच इस तरह की हो कि मैरिज नहीं होनी चाहिए, परिवार नहीं होना चाहिए, ये फिलोसॉफी यहाँ कार्य नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, ये मातृभूमि में मदरलैंड में भी विश्वास नहीं करते, दे डोंट बिलीव। वो कहते हैं पूरी दुनिया के सर्वहारा वर्ग एक हैं, तो इसके कारण से भी इस देश में जहाँ मातृभूमि के ऊपर लोग शहीद होने के लिए तैयार है, ये साम्यवाद और रेडिकल साम्यवाद यहाँ पर नहीं चलेगा। तीसरा जो मैंने बताया, ये धर्म पे विश्वास नहीं करते, रिलीजन जैसे ओपियम ऑफ मासेस, ये खत्म हो जाना चाहिए। तो रिलीजन भी आपने देखा होगा 90% लोग भारत में रिलीजियस पीपल हैं, वो भी इनके से खिलाफ है। फिर ये निजी संपत्ति और लास्ट में संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ है। भारत के लोग किस तरह निजी संपत्ति के लिए, बल्कि 7 पीढ़ी के लिए भी आगे के लिए बचा कर रखते हैं। तो ये इन सोच के कारण से जो 5 बिंदु जो मैंने बताया आपके, इसके कारण से यदि इसको अच्छी तरह से जनता को समझाया जाए तो साम्यवाद को यहाँ पर भी फेल होना है, असफल होना है, जैसा कि चीन में और रशिया में हुए हैं। और अब भारत के अंदर और खास करके छत्तीसगढ़ के अंदर जहां भी ये समस्या है, उसको दूर करने के लिए 5 सूत्री प्रोग्राम है, उससे बिल्कुल इसको समाप्त किया जा सकता है। उसको संक्षिप्त में मैं ये बताऊंगा। पहला सूत्र ये है कि वहां की लोकल पुलिस, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, जिस तरह आंध्र प्रदेश ने ग्रे हाउंड्स और हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडोज हमने जो तैयार किए, उन्हीं के द्वारा इस समस्या को जो आर्म्ड नक्सल्स हैं, जिनके पास में हथियार हैं, उनको केवल वहाँ की लोकल पुलिस जो उसकी टेरेन को समझती है, टोपोग्राफी को समझती है, वहाँ की भाषा को समझती है, वहाँ की कल्चर को समझती है, उसके द्वारा इनको डील करना चाहिए। ये बाहर से आई हुई 50 बटालियनें जो आ रही हैं, और कभी गलती ये नहीं करें, आर्मी को कभी किसी भी हालत में नहीं भिजाएं, क्योंकि उनको बाहर यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में उनको उतना जानकारी नहीं होती है। तो पहला है कि लोकल पुलिस को आप स्ट्रॉन्ग करिए और उनको ग्रे हाउंड्स टाइप और लोकल पुलिस के द्वारा ही इसको, जैसे आंध्र प्रदेश ने किया, इस समस्या का आर्म्ड नेक्सस को डील करिए उनको। दूसरा, डेवलपमेंट, ट्राइबल्स का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। जीडीपी की ग्रोथ होना एक बात है, और हर एक आदमी का डेवलपमेंट होना, जिसमें खास करके ट्राइबल्स जिनकी जल, जमीन और जंगल तीनों खतरे में हो जाते हैं जब वहां पे कैपिटलिज्म आता है। आपने उनको जॉब्स दिए हैं या नहीं दिए? वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, वहाँ बड़ी बड़ी खाने भी हैं, उनमें लोकल लोग कितने हैं? अच्छा डेवलपमेंट होना जरूरी है, जो इसे हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलेंगे। वहाँ पे हर परिवार में एक आदमी को आप क्यों नहीं जॉब दे देते? जैसे कई पॉलिटिकल पार्टीज आजकल घोषणाएं कर रही है कि हम हर परिवार को में एक को जॉब देंगे। आप यहाँ पर भी इस तरह की घोषणा करिए, हर परिवार में एक आदमी को जॉब मिलेगा और दे विल बी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और उनकी जो जल, जमीन और जंगल जो जा रहे हैं, उनको आप इतना खराब नहीं कर दें कि उनकी जिंदगी वहां रहना हराम हो जाती है। तीसरा जो है, जो गुजराती लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी संस्था
बिना पैसे के नहीं चल सकती। फंडिंग जैसे कहते हैं, पैसे के द्वारा ही दुनिया चलती है। पैसे से ये जो इनके आपने देखा होगा, इनकी ड्रेस कई वीडियो में आ रही है, इनको भी पैसा चाहिए, संस्था चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो फंड्स आर ऑक्सीजन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर आल्सो ऑक्सीजन टू नक्सल साइंस। तो इसको वो पैसा कहाँ से आता है बहुत लोगों को नहीं मालूम है। ये उद्योगों से आता है, ये खान जो मालिक चलाते हैं उनके वहां से आता है, वो हर लोग से पैसा लेते हैं। इस सोर्स को वहां हमें खत्म करना होगा, तीसरा। और चौथा ये है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन। सुशासन में करप्शन फ्री, संवेदनशील सरकार, जो सब अप्रोचेबल हो, लोग वहां पहुंच सकते हो, क्विक जस्टिस हो, अन्याय हो तो उनको न्याय मिले। ये नहीं कि 30-30 साल न्याय मिलने में लग जाए। तो सुशासन यदि होगा तो भी ये समस्या का हल होगा। और लास्ट में सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है परसेप्शन मैनेजमेंट, जैसे अनुभूति दृष्टिकोण युवाओं का, वहां पे रहने वाले लोगों का बदले कि केवल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो भारत की गणतंत्र सरकार है वो ही वहां पे डेवलपमेंट कर सकती है, जो वहां पे स्कूलें बना सकती है, वो वहां पे सड़कें बना सकती है, वहां पे अस्पताल बना सकती है, एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, पावर हाउस बना सकती है और उनकी गरीबी दूर कर सकती है। तब जाकर के वहां पर उनका हार्ट्स और माइंड्स हम दोनों उनकी जीत सकते हैं और इस समस्या का जड़ से इसका समाधान कर सकते हैं। नहीं तो केवल आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा तो आप केवल सिम्टम्स जो कहते हैं लक्षण को ही दूर कर सकते हैं। सिम्टम्स अलग चीज है और प्रॉब्लम दूसरी अलग चीज है। कोई भी डॉक्टर समझता है सिम्टम्स तो आपने देखा होगा ज्यादातर बीमारियों के एक जैसे होते हैं, सब में बुखार आता है तो पैरासीटामोल से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, पैरासीटामोल से आपके कोरोना का इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए रेमडेसिविर चाहिए, आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन किसका? डेवलपमेंट का। इंजेक्शन किसका? गुड गवर्नेंस का। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे इस समस्या का समाधान नहीं होगा और ये किसी नए नए रूप से उभर करके आती रहेगी। और ये मेरी सोच है और मैं जानता हूं कि समस्या का समाधान ये भारत की सरकार और लोकल सरकार अवश्य करना चाहेगी, उनको करना चाहिए। जय हिंद। धन्यवाद कुमार साहब, आपने तो बिल्कुल यू हैव हिट ऑन द हेड ऑफ द नेल। इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि विस्तृत विवरण समस्या और समस्या के समाधान का हमारे दर्शक मित्रों के सामने किसी और ने रख पाए होते। आपने बहुत सरल मगर संक्षिप्त में इस बात की हमारे सामने पेशी की। धन्यवाद आपको। सुहास जी, मैं केदार भाई के पास जाऊं उससे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके कोई विशेष सुझाव है, क्योंकि आप भी वहां जाके आए हैं, आप इनसे बातें करते रहते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह से समस्या का समाधान ढूंढा जाए? देखिए, वहाँ पे जैसे फॉर्मर डीजीपी साहब बता रहे थे, मैं काफी हद तक उनसे सहमति नहीं रखता हूँ, क्योंकि जैसे वो बता रहे थे कि फॉर्मर जो वहाँ के लोकल पुलिस हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए, वो टेरेन समझते हैं। तो वो चीज तो बहुत अरसे से हो चुकी है। इनफैक्ट जो सलवा जुलूम कैंपेन था वो यही था कि वहाँ के लोकल लोगों को आप एम्पावर करें, उन्हें बंदूकें दें ताकि वो खुद नक्सलियों को खत्म कर सके, माओइस्ट। बट वो बैकफायर हो गया, उसमें इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए और इतनी मारकाट मची कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इंटरवीन करके बोलना पड़ा कि ये इलीगल है, इसे बंद करो। और उसके बाद लोकल पुलिस की डीआरजी बटालियन जो है और उनके काफी सारे जो जवान हैं वो सरेंडर्ड नक्सली हैं। तो अब वो क्या रहा है कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी की वहाँ पे सिचुएशन है। सीआरपीएफ के जवान जो बाकी जगह से आते हैं उनसे भी मुठभेड़ होती है और आदिवासियों की खुद से भी मुठभेड़ होती है। तो वहाँ के इश्यूज तो बहुत सारे हैं, बट मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन मिलिट्री नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं मतलब ये माओवाद की समस्या इस दुनिया में 1 दर्जन से ज्यादा देशों में रही है। आपने चाइना का एग्जांपल दिया या रशिया का एग्जांपल दिया, तो वहां पे तो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन देश चला रही है ना, तो वहां पे तो वो कंट्रोल में ही है। बट जैसे कोलंबिया है, फिलीपींस है, नेपाल है, आपको कहीं ना कहीं जाके उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। मतलब आप अपने सिद्धांतों से पीछे ना हटें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये आप बंदूक की नोक पे पिछले 20 सालों में 12,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। आप बंदूक की नोक पे इसको नहीं खत्म कर पाएंगे। मेरा मानना यह है मिलिट्री ऑफेंसेस तो चलने चाहिए। जब आपके पास इंफॉर्मेशन है, किसी एनकाउंटर के लिए इंटेलिजेंस है एक्शनेबल, तो जरूर
उस पे काम करना चाहिए और वो चीज तो चलनी चाहिए। बट ये मान लेना कि हम सिर्फ संदूक की नोक पे इस सोल्यूशन इस समाधान इसका निकाल सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा। जी, बहुत जी। सारी समस्याएं हैं। धन्यवाद सुहास जी, फिर से हम आपके ज्ञान का लाभ जरूर लेंगे। कुमार साहब को भी विनती करेंगे कि आप ये चर्चा फिर हम आगे बढ़ाए तब जुड़े। કેદારભાઈ, સમાપનમાં આપની પાસેથી ટૂંકમાં આપ શું કહેવા માંગો છો? ગુજરાતમાં પણ આદિવાસી વિસ્તારોમાં ક્યાંક ક્યાંક હવે અલગતાવાદના સૂર સંભળાવા માંડ્યા છે, શું લાગે છે આપને? બધાની વાત સાંભળી અને બહુ આનંદ થયો, બધી વાત જે જાતના સુઝાવો આપ્યા છે. પણ મારો જો તમે અભિપ્રાય માંગો તો તેમ હમણાં જેમાં મુનશીજી કહેતા તેમ આપણે જે નક્સલાઇટ્સ છે એની સામે સ્ટ્રોંગ એક્શન તો લેવા જ પડશે, પહેલી વાત છે. અને સાથે સાથે આપણે એ લોકોને પણ મેઇન સ્ટ્રીમમાં લાવવાની કોશિશ કરવી પડશે. ખાલી ફોર્સથી એલિમિનેટ નહીં થાય આ લોકો. નવા નવા કાર્ડર્સ આવતા રહેશે, નવી નવી ટેક્ટિક્સ લાવતા રહેશે અને આ જેમ છેલ્લા 40 વર્ષ 50 વર્ષથી ચાલે છે એમાં આ ચાલતું રહેશે જો આપણે એના તરફ પણ ધ્યાન ન દઈએ એ લોકોને મેઇન સ્ટ્રીમ લાવવા માટે. પહેલા પણ આપણે જોયું છે બીજા દેશોમાં પણ, સાઉથ આફ્રિકામાં અને પેલેસ્ટાઇનમાં, ત્યાં જે આર્મ્ડ ગ્રુપ્સ છે એનો ખાત્મો ત્યારે જ થાય છે જ્યારે મેઇન સ્ટ્રીમમાં આવી જાય છે. પહેલી વાત તો મારે એ કહેવી છે. બીજી વાત એ છે કે સરકાર પાસે જે વસ્તુ છે ને જે નક્સલાઇટ્સ પાસે નથી એને આપણે સૌથી વધુ એક્સપ્લોઇટ કરવાની જરૂર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ટેકનોલોજી. આપણે ટેકનોલોજીનો પૂરો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે કે જેથી આપણું ઇન્ટેલિજન્સ નેટવર્ક સ્ટ્રોંગ થાય, એ લોકોને આપણે સ્પોટ કરી શકીએ, એ લોકોને આપણે પ્રિએમ્પ્ટ કરી શકીએ જે કાંઈ એટેક કરવા માટે. આઈ ડોન્ટ થિંક કે આપણે ટેકનોલોજીનો પૂરતો ઉપયોગ કરીએ છીએ. નાઇટ વિઝન ગોગલ્સ ને ડ્રોન ને બધા થોડા જૂના થઈ ગયા. ઉપયોગી છે પણ એથી પણ એડવાન્સ ટેકનોલોજી આજે અવેલેબલ છે જેનો આપણે ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. અને ત્રીજી વસ્તુ જે છે એ રિસોર્સિસ છે. સરકાર પાસે રિસોર્સિસની કમી નથી. હમણાં કોઈએ ડેવલપમેન્ટની વાત કરી, ડેવલપમેન્ટ તો જરૂરી છે પણ ડેવલપમેન્ટ આપણે એવું કરવું છે જે એને યોગ્ય લાગે, જે આદિવાસીઓને યોગ્ય લાગે. આપણને જેને ડેવલપમેન્ટ કહીએ છીએ એ ડેવલપમેન્ટ કરવાથી ફાયદો નહીં થાય. એ કોને ડેવલપમેન્ટ ગણે છે, એની શું જરૂર છે એ આપણે કરવાની જરૂર છે. આવી થોડીક વસ્તુઓ જો કરશું તો મને લાગે છે કે આનો નિવેડો આવશે. जी धन्यवाद केदारभाई। कुमार साहब, सुहास जी और केदार भाई, आप तीनों विद्वान पैनलिस्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने गुजरात समाचार टेलीविजन के साथ की इस चर्चा में जुड़कर चर्चा को एक नया परिमाण दिया, डायमेंशन दिया। आपकी जो अनुभव है, इंसाइट्स है, उसका लाभ हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया। ये सब के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है। धन्यवाद। आशा करते हैं भविष्य में भी हम आपको जब विनती करें आपके पास कुछ इनपुट्स के लिए या पैनल डिस्कशन के लिए प्रपोजल लेकर आए तो आप हमें ऐसा ही प्रतिभाव देते रहेंगे। वो आशा के साथ मैं चर्चा को समापन की ओर ले जाता हूं। दर्शक मित्रों, खूब रसप्रद चर्चा रही। હું નથી માનતો કે આ ગજાના નિષ્ણાતો સાથે નક્સલવાદ શું છે અને નક્સલવાદને નાથવા શું કરી શકાય એ પ્રકારની ચર્ચા દેશની રાષ્ટ્રીય ચેનલો પર પણ થઈ શકતી હોય. આજે આપણા ત્રણેય નિષ્ણાતો, એર કોમોડર કેદારભાઈ જે ગુજરાતીઓનું ગૌરવ છે, કોમાવત સાહેબ ફોર્મર ડીજીપી, ફોર્મર સ્પેશિયલ સેક્રેટરી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા હોમ મિનિસ્ટ્રી, एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द ग्रेहाउंड फोर्स हमारे सुहास जी जो एक जर्नलिस्ट है, एक जर्नलिस्ट की नज़रिए से वो ये घटनाओं को देखते हैं, उनके बीच जाते हैं, संवाद करते हैं। ये तीनों ने हमें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया है। फिर एक बार इन तीनों का धन्यवाद। शुभरात्रि। मिलते हैं कल एक नए मुद्दे के साथ, नई पैनल के साथ। शुभरात्रि।